یہ احسان تو ہمارا حکومت کو ماننا چاہیے، تو پھر پاکستان لاہور تک نہیں لکھنؤ تک بنتا۔ اگر آپ کا سگا بھائی اور آپ کی بہن بھی ان کے ساتھ ہے تو ناطہ توڑ لیجئے، یہ دین کہہ رہا ہے۔ اور ایسے لوگ جاتے ہیں جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وقف کی زمین اللہ کی زمین ہے، اس میں خلغل کرتے ہو اللہ کی زمین پر۔ اس مذہب کا حال یہ ہو گیا ہے کہ مسجد کے سامنے تلواریں لہراتے ہیں اور گردنیں کاٹتے ہیں اور جھنڈے اتارتے ہیں اور چھ چلی رام کرتے ہیں۔ سیاسی گلیاروں میں گھوما ہوں، میں نے بہت تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ کبھی ہم اس ملک میں اپنی بستیوں میں بھائیوں کی طرح رہتے تھے، آج ہم اسی علاقے میں ایک گنہگار کی طرح بس زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب تو دیش دروہی بھی ہو گئے۔ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ہمارے ساتھ تھے اور پھر اپنی سیاسی زندگی بنانے کے لیے ہم کو قسمت کے حوالے کہہ گئے۔ جو لوگ پاکستان چلے گئے اس کا الزام ہمیں دیا گیا۔ ہم مانتے ہیں جو پاکستان گئے وہ مہاجر ہو گئے، اپنی زندگیاں بنا دی، لیکن ہم نے تو اپنا خون بانٹا تھا، ہم نے تو جناح کو منع کیا تھا، ان کو ٹھکرایا تھا، ہم نے لیاقت علی خان کو نہیں مانا تھا، ہم نے نہرو اور گاندھی اور آزاد کو مانا تھا، اپنے خون کو بانٹا تھا۔ اگر ہم جناح کے ساتھ جاتے اور اگر اس وقت ہم سب مسلمان جناح کے ساتھ جاتے، یہ احسان تو ہمارا حکومت کو ماننا چاہیے، تو پھر پاکستان لاہور تک نہیں لکھنؤ تک بنتا۔ ہمارا احسان ہے، ہم نے پاکستان کو مختصر کر دیا اور ہمیں سزا دیتے ہو، تم ہم پہ ظلم کرتے ہو۔ اب تک جتنے بھی ہمارے اوپر حملے ہوئے ہیں، سب سے بڑا حملہ آپ کی اوقاف کا ہے۔ ہم کو لنچ کیا گیا، ہم پہ فساد ہوئے، ہمارے گھروں میں بلڈوزر چلے، ہم اس لیے نہیں بولے کہ میرا گھر تو محفوظ ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگی کے لیے جیتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ آپ لوگ ہماری قوت ہیں۔ ہم نے سب سے زیادہ جو مصیبت جھیلی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہماری حیثیت نہیں رہ گئی۔ ہم کبھی جانتے تھے، ہم جب علی گڑھ میں پڑھتے تھے تو اس وقت سیاسی جماعتیں کہتی تھی کہ کہیں میاں ناراض نہ ہو جائے۔ 2014 میں مودی ایک فارمولہ لے کے آئے کہ ہم بغیر مسلمانوں کے حاکم وقت بنیں گے۔ وہ بن گئے۔ ان کے بننے کے بعد ہر سیاسی جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تو ایک بوجھا ہیں، ہم کو اپنا ہندو ووٹ بچانا ہے۔ یہ ملک اس لیے نہیں بٹا تھا۔ مولانا آزاد نے جو بات کہی تھی کہ وہ یہ ذہن ملک نہیں بٹ رہا ہے، کہ قوم بٹ رہی ہے، اور وہ قوم آج وہ حالت ہے کہ اگر کسی دلت کے اوپر کوئی لنچ ہو، بینچ مارے، تو ہر پولیٹیکل پارٹی وہاں جانے کو تیار ہے۔ ہمیں گھر میں ہمارے گھس کے یہ پوچھیں کہ تم کھاتے کیا ہو، مار ڈالیں، کسی کے زبان پر آواز نہیں آتی۔ کیسی بدنصیب قوم ہے یہ، ابھی بھی بٹی ہوئی ہے، ابھی بھی اشراف اور پاسماندہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ ارے پوری قوم پاسماندہ ہو گئی ہے، بے حس ہو گئی ہے، سو رہی ہے۔ کب تک جاگو گے تم لوگ؟ اپنی حیثیت کو پہچانو۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں آپ سے بالکل واضح الفاظ میں کہہ دوں، میں ذہنی طور پہ کانگریسی ہوں، کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، میں جوتی نہیں اٹھا سکتا ہوں کسی کی۔ اور جب میں پارلیمنٹ گیا تھا تب بھی یہ کہہ کے گیا تھا کہ آزاد جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہاں تک پہنچایا۔ اس گنبد سے بیٹھا تو میں نے سب کے اوپر سے نقابیں اترتے دیکھ لی، سب کو پہچان لیا کہ صرف اور صرف ہمارا ووٹ چاہیے۔
ताबेदारी कब तक करोगे मेरे अजीजों, कभी तो हिस्सेदारी मांगो। आज हमारी हैसियत यह है कि एक जिले का एक कैंडिडेट उसको मनाया जाता है कि फला कम्युनिटी का इतना वोट है और तुम कहाँ खड़े हो। कोई पार्टी आपके लिए बोलने को तैयार इसलिए नहीं है कि आप मुत्तहिद नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अलग मुस्लिम पार्टी बनाए हैं, मैं ये नहीं कहता इसलिए कि हमने फैसला उस वक्त भी किया था जब पाकिस्तान बटा था कि हम अकेली दुनिया नहीं बसाएंगे, और मेरे दीन ने भी मुझको यही नहीं सिखाया कि हम अपनी दुनिया बसाएं। हम तो यहाँ इसलिए भेजे गए थे, इस जमीन पे अल्लाह ने इसलिए भेजा था कि हम रहमत बन के बने, दूसरों को जोड़ें, अपना पैगाम दें, लेकिन हम तो जहमत बन गए आपस में, हमको कोई पूछने वाला नहीं रहा। आज मैं आपसे कहता हूँ कि अपनी कुव्वत का मुजाहरा करें, और वो हजरात जो आज भी इस बैंक को साथ दे, वो पार्टियां, उनसे कातारी ताल्लुक तोड़ लीजिए। अगर आपका सगा भाई और आपकी बहन भी उनके साथ है तो नाता तोड़ लीजिए, ये दीन कह रहा है आपसे। कह दीजिए उन लोगों से, उन पार्टियों से कि अगर तुमने इसके हिमायत में वोट दिया तो कभी हमारी बस्तियों में वापस मत आना, हमारे जलसों में, हमारे खानों पे, हमारी बरादरी में आने की जरूरत मत करना। अगर ये कुव्वत बन के तुम उठते हो तो वो लोग जो हमारे वोटों से फायदा उठाकर हाकिम वक्त बने हुए हैं, आज अंदाजा इस बात से लगा लें कि अब ये कहा जाता है कि मियाँ जाएगा कहाँ, तो मियाँ जब ही जाएगा जब मियाँ मुत्तहिद हो जाएगा। बदनसीबी ये है कि जिस अंदाज के और जिस तरह के लोग अब हाकिम वक्त हैं, उनको देख के शर्म आती है। इस मुल्क को कैसे मैं कह दूं, मुझसे कहा जाता है कि गर्व से कहो, गर्व से क्या कहूं, इंसान को मार के जश्न मनाए और मंत्री हार पहनाए और हम कहें कि जिनके गर्व करें। मैं शर्मिंदा हूं अपने मुल्क से। इस मुल्क में कहते हैं बड़ी तरक्की हुई है, अगर चौराहों पर भीख मांगने वाले हाथ न हो और लोग मदद न करें, हजारों लाखों लोग रोज भूख से मर जाएंगे, और फिर भी कहते हैं कि हमने बड़ी तरक्की कर ली है। ये बेशर्म लोग हैं। दुनिया में मैंने हर मुल्क सफर किया है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। अब फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, कारोबार खत्म हो जाए, किसान मर जाए, बच्चों को नौकरी न मिले, जश्न इस बात का है कि मियाँ को तो ठीक कर दिया। जब ये फिजा हो जाए तो कैसे कोई कह दे कि हमको फख्र है अपने मुल्क पर, हम शर्मिंदा हैं अपने मुल्क से। हम आज से 3 दिन पहले एक मीटिंग में मैंने अपने हिंदू भाइयों से कहा कि तुमने जो हम पे जुल्म हो रहा है, आपको याद है चंद साल पहले एक तूफान इस्लाम के नाम से उठा था बगदाद में और अफगानिस्तान में, इंसान को इंसान मार रहा था। हिंदुस्तान के हर आलिम दीन ने और हर दानिश्वर ने और हर समझदार आदमी ने कहा था ये मेरा दीन नहीं है, हमारा इससे ताल्लुक नहीं है। जुर्रत होनी चाहिए मेरे हिंदू भाइयों को, मैंने उनसे कहा, उनकी महफिल में कहा, अगर आप ये जुर्रत नहीं रखते कि ये कह दें कि ये हिंदू मजहब नहीं है जो चलाया जा रहा है, तो यकीनी तौर पर हिंदू मजहब आज हम कहने को तैयार हो जाएंगे कि आतंकवादी मजहब है। इसलिए कि नवरात्रियों में मुझे याद है, नवरात्रि एक ऐसा मजहब है जहाँ 9 दिन तक वो लोग जिस तरह से हम रोज़ा रखते हैं वो भी एहतियात करते हैं, अपने को प्योरीफाई करते हैं। उस मजहब का हाल ये हो गया है कि मस्जिद के सामने तलवारें लहराते हैं और गर्दनें काटते हैं और झंडे उतारते हैं और जय श्री राम करते हैं। ये किस किस्म की फिजा चली है? अगर यही रहा, मैं अभी हज़रत मौलाना मुजद्दिदी साहब से कह रहा था कि मैंने अलीगढ़ की एक महफिल में, मैं अलीगढ़ से पढ़ा हूँ, मैंने अलीगढ़ की एक महफिल में लोगों से कहा, अपने नौजवानों से, कि अगर जो लोग अपने को सेकुलर कहते हैं
अगर वो मुत्तहिद होने को तो तैयार नहीं है तो इलेक्शन से हट जाओ और फिर ये तमाशा देखो, एक इलेक्शन से बायकॉट कर दो, फिर पता लग जाएगा। तो मेरे अलीगढ़ के दोस्तों ने ये कहा कि भाई तुम तो अब मरने वाले हो, हमको कह रहे हो कि हम पार्लियामेंट और असेंबली न जाएं, खुद तो पार्लियामेंट तक हो आए। मैं चुप हो गया, लेकिन एक हिंदू दानिश्वर की बात सुनी है, उसका नाम कुलदीप नैयर था, मर गए वो। कुलदीप नैयर ने मुझे फ़ोन किया, कहा ऐसी आवाज़ कभी मत निकालना। मैंने कहा मैंने क्या कहा? कहा नहीं, अखबार में छपा और मैगजीन में छपा है तुम्हारा बयान, ऐसी बयान मत करना, नहीं हम 1000 साल पीछे चले जाएंगे। ठाकुर पंडित से लड़ेगा और पंडित दलित से लड़ेगा और दलित से लड़ेगा, हम तबाह हो जाएंगे। तो हमने कहा यही तो वजह है कि हम आपको जोड़ रहे हैं। इनका सबसे बड़ा जो इनका फिलॉसफी करने वाला जो आदमी था, जिसने ये बात कही थी हिंदू फिलॉसफी में कि अगर तुम्हें अपने ऐब छुपाना है और हुकूमत करनी है तो एक धोखा खड़ा करो, एक दुश्मन तैयार करो। आज बीजेपी ने और उनके साथी लोगों ने एक दुश्मन तैयार कर दिया और वो दुश्मन मुसलमान है। इस मुल्क की जितनी नाकामियाँ, जितनी बदनामियाँ, जितनी नाकाम हैं, वो सब का जिम्मेदार मुसलमान को करार दिया जाता है। एक वक्त ये भी आएगा, और मैंने मजमून में लिखा था कि अगर यही कैफियत रही और हम इसी तरह से बढ़ते रहे और टिकट के लिए और इलेक्शन के लिए जिसको हम जश्न समझते हैं, किसी न किसी सूरत से इलेक्शन लड़ लिया जाए और वहाँ हम कहाँ खड़े हो गए। तो मैंने कहा था कि एक वक्त आएगा, मैं रहूँ या न रहूँ, एक फैसला करना पड़ेगा हमको कि ये मुल्क जमहूरी मुल्क नहीं है। हम देखते हैं, जाओ देखो कितने यादव यादव करेगा, कुर्मी कुर्मी करेगा, पंडित पंडित करेगा, मियाँ तो होंगे नहीं बीच में, फिर रोजी रोटी पे हिसाब किताब होगा। अल्लाह ने हमको अक्ल दी है, हमको सोच दी है। जो कौमें अपने मुस्तकबिल का खाका नहीं बनाती, वो ज़मीन की उस सतह पे खड़ी हो जाती हैं जहाँ हम खड़े हैं। हम माजी में जिंदा हैं, हम माजी की बातें करते हैं, हमें सोचना पड़ेगा। और यकीन करिए कि अगर ये बिल पास हो गया, हम परसों, अल्लाह का बड़ा करम है कि हमने अलीगढ़ का मुकदमा जीत लिया। सन 66 में जब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी यूनियन का सदर था, उस वक्त मेरी यूनिवर्सिटी को छीना गया था। आज 57 साल के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी दरगाह को वापस दिखा लूँगा। उसका करम है कि मेरे बहुत से साथी अब दुनिया से चले गए, मुझसे पहले वाली नस्ल ख़त्म हो गई, मेरी नस्ल के चंद लोग बचे हैं। एक फिक्र थी, खैर वो तो बच गई। मदरसा के मसले में भी 2 जजमेंट ऐसे आ गए जिससे दिल ने कहा कि इन पे एतबार कर लो, नहीं तो अदलिया पे भी एतबार नहीं रह गया था हमारा। लेकिन इन 2 जजमेंट का इख्तियार हमें दे दिया। और जो इस वक्त की कैफियत है, अगर आप देखें कि इसमें हमारी कोताहियाँ थी, मुझे माफ़ करें मैं 2 मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ। कोताहियाँ ये थी कि वक्त को हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया था, और वक्त को हम ये समझ रहे थे, वक्त में कौन लोग जा बैठते थे। सियासी पार्टियाँ उनको चेयरमैन बनाती हैं, उनको मेंबर बनाती हैं जिनको वो टिकट नहीं दे पाती हैं, जिनको वो ओबलाइज करती हैं। और ऐसे लोग जाते हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि वक्त की ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है, उसमें खुर्द करते हो अल्लाह की ज़मीन पर। उस खुर्द के लिए 2013 में मैं उस वक्त पार्लियामेंट में था और ये एक्ट बनाया गया। रहमान साहब उस वक्त मिनिस्टर थे और मैं मेंबर था। हमने 6 महीने तक सारे उलमाए कराम से, जितने भी स्टेक होल्डर थे, सबसे बातचीत करके एक मजबूत वक्फ बिल बनाया। और उसकी वजह ये थी कि हमने कहा कि वक्त की ज़मीन आप बेच नहीं सकते, इसलिए कि जब आप अपनी ज़मीन को अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो आप उसके मालिक नहीं हैं, सिर्फ मैनेजर हैं, आप उसके मुतवल्ली हैं, आप बेच नहीं सकते। ये सब कानून बन गए थे।
اور اسی طرح سے دہلی میں ایک مسجد کے نیچے 6 دکانیں 26 روپے پہ اٹھی ہوئی تھیں اور بغل کی دکانیں 2500 پر. اس میں یہ قانون بنایا کہ ہم اسی قیمت پہ دیں گے جو مارکیٹ پرائس ہے. اس سے یہ اندازہ ہوا تھا کہ ہم اتنی آمدنی بڑھا لیں گے کہ ہم اپنی مدد سے اپنے اسکول، اپنے کالجز، اپنے اسپتال چلائیں گے. 13 میں وہ بل آیا، ایکٹ بنا. 14 میں موصوف تشریف لے آئے اور ان کو ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ ہم کسی نہ کسی صورت سے وہ زمین اگر مسلمان جاگ گیا اور اپنے وقف کی زمینوں کو قاعدے سے استعمال کرنے لگا تو یہ بھیک مانگنے والے نہیں، بھیک دینے والے ہو جائیں گے. ہم نے کوتاہی کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ وقف کی زمینوں کو لے لو. اسی طرح سے مینارٹی منسٹری میں ایک منازعات فاؤنڈیشن جس میں 25,000 بچوں کو اسکالرشپ دیا جاتا تھا ہائی اسکول اور ہائی اسکول سے اوپر،